నమస్కారం. హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే ఉండి इधर ही रहते हुए हैदराबाद में जो आज बहुत सालों से राजस्थान से आए हुए हमारे भाई बहन अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग व्यापार करते हैं और बहुत सालों से डिमांड था. చాలా రోజుల నుంచి డిమాండ్ ఉండేది. రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాలతో రైల్వే శాఖ మంత్రి అయినటువంటి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు ఈ చిరకాల డిమాండ్ ఏదైతుందో మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నుంచి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి జోధ్పూర్కు డైలీ నేరుగా ట్రైను ఇవ్వాలనేటువంటి మరి నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు స్వయంగా వారికి వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కూడా నేను జోధ్పూర్ ట్రైన్ ప్రారంభోత్సవానికి హైదరాబాద్కు వస్తానని చెప్పి నిర్వహించేటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు అక్కడ మొత్తం స్టాఫ్ అంతా కూడా బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్లో మహిళలు ఉండే విధంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఉదయం అశ్విని వైష్ణవ్ గారు వరంగల్కి వెళ్ళి వరంగల్లో రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అత్యంత అద్భుతంగా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తర్వాత అతిపెద్ద నగరమైనటువంటి వరంగల్లో రైళ్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలని, రైల్వే కోచ్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలని, రైల్వే వ్యాగన్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలని నరేంద్ర మోడీ గారి ఆదేశాలతో అశ్విని వైష్ణవ్ గారు నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు అక్కడ రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ మరి నిర్మాణం చాలా వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉంది. మనకందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం ఉద్యమాలు జరిగాయి. పివి నరసింహరావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అనేక ఉద్యమాలు జరిగాయి. కానీ ఆ రోజు జరిగినటువంటి అనేక పోరాటాలకు ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు సాకారం అవుతా ఉంది. ఆ రకంగా తెలంగాణలోని అన్ని రైల్వే నెట్వర్క్ అంతా కూడా విద్యుదీకరణ చేయడం జరిగింది 100%. అనేకమైనటువంటి అన్ని రైల్వే స్టేషన్లో ఫ్రీ వైఫై సౌకర్యం కూడా కల్పించడం జరిగింది. మరి ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఇప్పటికే 3 పెద్ద రైల్వే స్టేషన్లు ఉండేవి. ఒకటి కాచిగూడ మనది, రెండోది నాంపల్లి హైదరాబాదు, మూడోది సికింద్రాబాద్. దీనికి తోడు మరి 4వ రైల్వే స్టేషన్ టెర్మినల్ గా చెర్లపల్లి కూడా అశ్విని వైష్ణవ్ గారి నేతృత్వంలో దానికి భూమి పూజ చేసి అది నిర్మాణం చేసి ప్రధానమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మన తెలంగాణ ప్రజలకు ఆ యొక్క చెర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ కూడా డెడికేట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా 720 కోట్ల రూపాయలతోటి దాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం. వచ్చే సంవత్సరము అద్భుతంగా ఎయిర్పోర్ట్ ఏ రకంగా ఉంటుందో శంషాబాద్ లో మన రైల్వే స్టేషన్ కూడా అదే విధంగా అదే స్థాయిలో అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది అనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. వచ్చే సంవత్సరము కొత్త రైల్వే స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ డెడికేట్ చేస్తాం. మరొకటి హైదరాబాదు, అది కూడా 350 కోట్ల రూపాయలతోటి ఆ యొక్క నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ కూడా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం. సికింద్రాబాద్ కు స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి కొత్త రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణానికి ఆయన చేతుల మీదుగా భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ కు వర్చువల్ గా వారే భూమి పూజ చేశారు. వారి చేతుల మీదుగానే నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత ఈ 2 రైల్వే స్టేషన్లు ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ 2026 లో ప్రారంభం కాబోతుందన్న విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. ఈరోజు మనకు తెలుసు, ఈ యొక్క హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈ ట్రైను ప్రతిరోజు బయలుదేరుతా ఉంది. అనేకమైనటువంటి ఇతర ప్రాంతాల ద్వారా ఆ యొక్క ట్రైన్ వెళ్తుంది. కాబట్టి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను,
ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో రైల్వేల అభివృద్ధి కోసం అశ్విని వైష్ణవ్ గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు అండగా నిలబడి ఆశీర్వదించాలని, తప్పకుండా గత 76 సంవత్సరాలుగా 77 సంవత్సరాలుగా ఈ తెలంగాణలో రైల్వే నిర్మాణంలో, రైల్వే వసతుల కల్పనలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగింది, నిర్లక్ష్యం జరిగింది. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రైల్వే నెట్వర్క్ పెంచడం కోసం అన్ని రకాలుగా భారత ప్రభుత్వము, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అనే విషయాన్ని నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మనందరి తరఫున ప్రధానమంత్రి గారి ధన్యవాదాలతో పాటు అశ్విని వైష్ణవ్ గారు కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనం అనేక రోజులుగా ఉన్నటువంటి డిమాండ్ను వారు అంగీకరించి ఈ యొక్క డైలీ రైళ్లు అంగీకరించి వారే ప్రారంభించడానికి రావడము నేను వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. क्या भाई आवाज में दम नहीं है? देखे कितना ताकत है। भारत माता की। हाँ ये हुई ना बात कुछ। साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी को। आपने एक ऐसा ऐतिहासिक काम आज किया है जो कि कई वर्षों से जिसकी डिमांड थी। मैं और बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। बहुत उन्होंने लगातार परस्यू किया प्रवासी राजस्थानियों के लिए जो ट्रेन की कनेक्टिविटी चाहिए थी उसके लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पाली के एमपी श्री पीपी चौधरी साहब को भी। उन्होंने भी लगातार परस्यू किया कि किस तरह से रेलवे की ये कनेक्टिविटी हो सके। कई कठिनाइयाँ थी, लेकिन जैसे जैसे रेलवे का नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, नई पटरियां बन रही है, नई पटरियां बनने के साथ साथ धीरे धीरे देश में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ रही है। नई पटरी बनने से ज़्यादा संभावना बनती है नई गाड़ियों को चलाने की। स्टेशन का विस्तार भी सब जगह हो रहा है। तो जब भगत की कोठी स्टेशन का विस्तार हुआ तो एक संभावना बनी, और इधर काचीगुड़ा, सिकंदराबाद और इस पूरे रूट में 3rd लाइन का काम हुआ तो एक संभावना बनी। और जैसे ही संभावना बनी, ये आज काम आपके लिए शुरुआत हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं इतनी बड़ी एक आपके वर्षों पुरानी डिमांड के लिए। मेरे सामने एक और ध्यान में आई है बात कि कई लोगों का विचार था कि ये जालोर वाली साइड से, भीलड़ी वाली साइड से जानी चाहिए, लेकिन बैठिए आपकी बात मेरे दिल तक पहुंच गई है ऑलरेडी। देखिए कम्युनिकेशन कितना सीधा है। बैठिए मैंने आप ही की बात कर रहा हूँ, बैठिए आप ही की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि अभी अहमदाबाद स्टेशन में बहुत बड़ा काम चल रहा है। आप लोगों को जानकारी है अहमदाबाद स्टेशन में काम चल रहा है जो, तो अहमदाबाद इसका नेचुरल रूट जो है वो रूट वाया अहमदाबाद होके राजस्थान की तरफ जाने का था, लेकिन अहमदाबाद स्टेशन पे बहुत काम चल रहा है। जैसे अपने यहाँ सिकंदराबाद में भी काम चल रहा है, वैसा ही काम वहाँ पर अहमदाबाद में चल रहा है। तो जब तक अहमदाबाद में करीब 1-1.5 साल का और समय लगेगा काम कंप्लीट होने का, उधर से और कोई नई गाड़ी रवाना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे परिस्थितियाँ बदलेंगी तो आपका ये जो सपना है वो सपना भी पूरा होगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी ये बात मेरे विषय में आई हुई है और बहुत आराम से शांति से मोदी जी का सपना जो भारत के लिए है वो सपना एक एक करके पूर्ण होगा। साथियों, अभी ज़्यादा समय नहीं लगाते यहाँ पर। गाड़ी का समय 5:40 था, कितनी बजे था? 5:40। गाड़ी के समय 5:40 था। सीधा अभी शुभारंभ करते हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कागज़ की ज़रूरत ही नहीं है, दिल में पहुंच गई बात। सभी को नमस्कार। हम सब मोदी जी के गांव से हैं। मोदी जी गुजरात से है और मोदी जी के जो सबसे प्रिय है वो है कच्छ है। और हम सभी कच्छ के निवासी यहाँ पर हैदराबाद में करीब 5 लाख कच्छी लोग हैं
जो यहाँ पर बसे हुए हैं काफ़ी समय से, और हमारी पिछले 22 सालों से इच्छा है कि भाई हैदराबाद से या सिकंदराबाद से भुज तक के लिए ट्रेन प्रारंभ की जाए। काफ़ी सीके जाफ़र शरीफ, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, जितने भी रेलवे मंत्री थे, हमने सबको ज्ञापन दिया। सुरेश प्रभु जी है, अश्विनी वैष्णव जी को भी 3 बार दिया जा चुका है। पीयूष गोयल जी जो रेलवे मंत्री थे, सुरेश प्रभु जी थे, सभी को निवेदन किया गया। जितने भी जीएम हैं दक्षिण मध्य रेलवे के, उनको भी दिया गया था। पर 22 साल हो चुके हैं, आज तक भी ये ट्रेन चालू नहीं हुई है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्द, जैसे जोधपुर की ट्रेन चालू हुई है, वैसे ही जल्दी हमारे कच्छ के लिए ट्रेन भी प्रारंभ हो जाएगी। और मोदी है तो मुमकिन है, सभी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हैदराबाद में जो राजस्थान के प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए डायरेक्ट ट्रेन, स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चालू की गई है। इसी श्रृंखला में हमारे प्रिय मंत्री जी किशन रेड्डी जी और अश्विनी जी, इन्होंने हमें भी आश्वासन दिया है कि कच्छ गुजरात के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन की जाएगी। तो हम ऐसी आशा रखते हैं, और मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है, ये सभी को पता है। इसी के साथ मैं अपना मंतव्य पूरा करता हूँ। कच्छ, मुंद्रा और कच्छ में जब भूकंप आया, उसी की बदौलत मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने गुजरात में, और उनका कच्छ के प्रति बहुत ही लगाव है। और अदानी पोर्ट कच्छ में, उससे आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी कच्छ के लिए। तो ये ट्रेन सभी के लिए सुविधाजनक होगी, ये मेरा मानना है। नमस्कार, आज बड़ा खुशी का दिन है। राजस्थान वासियों के लिए नया ट्रेन चालू हुआ है। इसी तरीके से कच्छ के लिए बहुत सालों से हमारी कच्छ वासी जो गुजरात के लोग हैं, इनकी बहुत दिनों से मांगनी है कि ये ट्रेन चालू हो जाए। जो गुजरात के अंदर पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, वहाँ पे दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग भी काम के लिए आते जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी सुविधाजनक मुंद्रा पोर्ट बंदर पे काम करने वाले और वहाँ के रहवासियों के लिए रहेंगी। इसलिए हम जल्द से जल्द आशा करते हैं कि हमारी मांगनी भी अभी इसके तहत जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। जय भारत, भारत माता की जय। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 आज हैदराबाद यानी भाग्यनगर के लिए आज एक विशेष दिन था, और आज यहाँ से हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन से डायरेक्ट भगत की कोठी यानी जोधपुर के लिए आज हमारे आदरणीय हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी और हमारे सिकंदराबाद के लोकसभा सांसद और केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री किशन रेड्डी जी एवं भाजपा के कई अन्य नेताओं के साथ में यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया गया। यह ट्रेन राजस्थानियों के लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए और तेलंगाना वासियों के लिए, तीनों के लिए बहुत उपयोगी ट्रेन है, क्योंकि ये यहाँ से वाया अकोला होकर के अकोला वाशिम और आगे उज्जैन रतलाम होते हुए चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर वालों के लिए भी चित्तौड़गढ़ स्टेशन बहुत काम आता है और नज़दीक है, और वहाँ से लगभग 2.5 घंटे की जर्नी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर। तो उदयपुर वासियों के लिए यानी मेवाड़ के लिए, यानी सभी को ध्यान रखते हुए यह ट्रेन आज प्रारंभ हुई है। हम उनका खूब अभिनंदन करते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार का खूब अभिनंदन करते हैं। और यह कार्यक्रम आज यहाँ पर हमारे राजस्थानी प्रवासी बंधुओं का जो यहाँ पर स्टेशन के ऊपर जो मेला लगा था वो देखने लायक था, और साथ ही साथ में हमारे कच्ची गुजराती समाज वाले जो उनकी भी मांग है कि बहुत दिनों से, कई वर्षों से मांग कर रहे कि डायरेक्ट गांधी धाम कच्छ भुज के लिए ट्रेन हो, उसके लिए मांग भी यहाँ पर ये लोग यहाँ पर रखने आए हैं, और इनकी मांग को भी हमारे मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। और जल्द से जल्द अहमदाबाद स्टेशन का काम पूर्ण होने पर लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर कच्छ की ट्रेन और ये जो हमारे जोधपुर की जो ट्रेन है वो वाया अहमदाबाद, भिलड़ी, समदड़ी, बालोतरा होते हुए, जालोर होते हुए जोधपुर तक के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये आश्वासन नहीं है मोदी जी की सरकार के अंदर आश्वासन नहीं होता है, वो कार्य बराबर पूरा होता है। और इस तरह से बहुत हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जो भी आज यहाँ पर पधारे हैं। और हमारे यहाँ पर इस आज मंच का संचालन हमारे युवा नेता भाजपा के अविनाश भाई देवड़ा ने बहुत ही सुंदर रूप से संचालन किया है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। और साथ ही साथ में हमारे वडील सोनलाल जी कड़ेल और अन्य हमारे सभी नेताओं ने, हमारे मित्रों ने जो कार्य किया है। आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है जो पिछले 2 दशकों से तेलंगाना निवासित प्रवासी राजस्थानी भाइयों की एक मांग रही है
कि हैदराबाद से जोधपुर के लिए एक सीधी रेल होनी चाहिए और वो भी प्रतिदिन होनी चाहिए। इस मांग को समय समय पर हमारे वरिष्ठ जनों ने, मुख्यकर प्रवासी समाज के वरिष्ठ आदरणीय श्री सोनलाल जी कड़ेल, श्री घनश्याम जी भाटी, सीए श्री जसराज जी श्रीमाल, श्री हरिकिशन जी ओझा, श्री प्रेम सिंह जी राठौड़ एवं श्री गोविंद राठी जी, जो हमारे वरिष्ठ व भाजपा नेता है, समय समय पर उन्होंने हैदराबाद से मरुभूमि के लिए प्रतिदिन ट्रेन के लिए आह्वान किया था। लेकिन बात तो तभी सत्य होती है क्योंकि यह बात है कि मोदी जी की गारंटी ही गारंटी का पूरा होने की गारंटी का नाम है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हम देख सकते हैं कि किस तरह से विकास हुआ है रेलवे स्टेशनों का, किस तरह से रेलगाड़ियों का विकास हुआ है, किस तरह से सुपर फास्ट ट्रेनें लगाई गई है, किस तरह से भारत माला एवं वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस, काफ़ी ट्रेनों का जो नई ट्रेनों की योजनाएं प्रारंभ की गई और उसी की श्रृंखला में विभिन्न राजस्थानी समाजों द्वारा, राजस्थान के सांसदों, विधायकों द्वारा और हमारे सिकंदराबाद क्षेत्र के लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने के नेतृत्व में हम सभी राजस्थानी संगठनों ने वर्ष 2022 में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास यह मांग लेकर गए थे। तो उस समय अश्विनी वैष्णव जी ने यह बताया था कि कुछ जटिलताओं के कारण हम ये रेल सेवा प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही वर्ष 2 वर्ष में उन जटिलताओं को हटाकर हम निर्बाध ट्रेन, प्रति दिवस रेल हम हैदराबाद भाग्यनगर की भूमि से वीर शौर्यों की भूमि तक, जोधपुर तक वो रेल उन्होंने योजना बनाई। केवल यह एक जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच में की रेल नहीं है। इस रेल में उन्होंने बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका, गिरनार और चित्तौड़गढ़, वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़, मेवाड़, सभी से जोड़कर एक नई संस्कृति की पहचान भी बताई है। यह रेल तेलंगाना से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की मरुभूमि पर प्रवेश करेगी। मैं मानता हूं कि इस ट्रेन का रूट 4 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा जब हम इस रेल से यात्रा करेंगे। और जैसे कि आज माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम इस ट्रेन को और भी विस्तारित करेंगे, और जैसे कि हम सभी जालोरवासी, नागौरवासी, समदड़ी, भीलड़ी, रानी, नाडोल ऐसी जगहों के स्टेशनों पर भी यह रेल पहुंचने का काम करेगी। पिछले दिनों जब इस रेल के इस शुभारंभ के संदर्भ में जब चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया गया, रेल भवन में अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के लिए जब मुझे आमंत्रित किया गया, उस समय मैंने अपने गुजराती भाइयों का विषय जो कच्छ और भुज के लिए हमें रेल, वो भी काफ़ी करीब 2 से 3 दशक से बहु प्रतीक्षित है। हमारे हृदेश भाई जागीरदार, हमारे जजमत भाई पटेल, प्राणी मित्र रमेश भाई जागीरदार जी, और उस समय से काफ़ी लोगों ने इस रेल के लिए संघर्ष किया है। लेकिन जैसे ही मैंने कच्छ करके शब्द निकाला तो तुरंत ही माननीय रेल मंत्री जी के मुख से निकला, हाँ भाई अविनाश, आप क्या कहना चाहते हो, मैं जानता हूँ, मुझे भी पीड़ा है, मुझे भी जल्द से जल्द उस रेल को प्रारंभ कराना है, लेकिन मैं भी बंधा हुआ हूँ क्योंकि अहमदाबाद में जो रेल विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है वो एक बार पूरा हो जाए तो उसके बाद हम कच्छ और भुज के लिए भी नई रेल अति शीघ्र ही हम उसे पूर्ण रूप से प्रभाव में ला लेंगे। और निश्चय ही रेल मंत्रालय के क्षेत्र में माननीय अश्विनी जी वैष्णव जी का आप सभी को पता है कि कोई सानी नहीं है। उसी प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोडवेज और हाईवेज में भी हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का भी कोई सानी नहीं है।
हम देख सकते हैं कि आज कितनी सुगमता के साथ हम एक स्थल से दूसरे स्थल तक कितना आसानी से हम परिचालन कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी ये कहते हैं, सदैव आपने सुना होगा कि हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है। बस इसी तरह की सकारात्मक सोच जो आज की इस मोदी सरकार में, जो आज की इस भाजपा की सरकार में है, वो आप देख सकते हैं कि आगे भी बहुत ही सुचारू रूप से हम प्रवासियों के लिए कार्य कर रही है। और मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी का, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जी का और सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश जी गहलोत का और के बिश्नोई जी का, जो समय समय पर दिल्ली पर जब भी उपस्थित रहे उन्होंने मुझे भी बुलवाया और अश्विनी वैष्णव जी के साथ हमने समय समय पर इस रेल से संबंधित चर्चाएं की। ये रेल आज इस संघर्ष का परिणाम है जो पिछले 2 दशकों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा था। भाई ये तो समय हो गया मोदी जी की सरकार आते आते, वरना कभी का हम प्रवासियों को इस तरह के लंबी ट्रेनों के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं प्रदेश में, प्रदेश की सरकार का कोई यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। ये कितनी दुखद बात है। क्या प्रवासी राजस्थानी उनके वोटर नहीं हैं? उन्हें यह सोचना चाहिए, क्या वो इतना भी नहीं कर सकते कि आज के शुभ घड़ी के अवसर पर प्रवासी राजस्थानियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें? अरे उन्होंने ट्रेन न दी न दे, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में यह साकार हुआ है तो आप मात्र आकर यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित कर दे। लेकिन साथ ही मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का और मेरे सभी राजस्थानी समाज के भाइयों का, जिनके इन अथक प्रयासों से ये आज ये सपना सभी का पूर्ण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, तेलंगाना जय, तेलंगाना जय, तेलंगाना जय, तेलंगाना जय, राजस्थान जय, राजस्थान जय, राजस्थान जय, राजस्थान जय, गुजरात जय, गुजरात जय, गुजरात जय, गुजरात जय, जय गरवी गुजरात जय, जय गरवी गुजरात। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय, జై భారత్. నా పేరు సర్లా కేత్నేని, అమీర్పేట్ కార్పొరేటర్. ఈరోజు ఏదైతే మనకి రాజస్థాన్ వెళ్ళే జోధ్పూర్ వెళ్ళే ట్రైన్ ఇక్కడ మన కాచిగూడ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళేదో ఇక్కడ ఉన్న నార్త్లో, ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది, ఆ టైంనంతా సేవ్ చేసి డైరెక్ట్ ట్రైన్ వేయడం అన్నది మన ముందుగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ విషయంలో కలెక్ట్ చేసుకుని మన కేంద్ర మంత్రి వారు కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా దీన్ని చొరవ తీసుకుని మనకు అవసరమైంది ఇక్కడ ఉన్న నార్త్ రాజస్థానీ డైరెక్ట్ ట్రైన్ వెళ్తే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ నగరమే పూర్తిగా అన్ని రకాల కమ్యూనిటీస్తో నిండి ఉంటుంది, అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు కాబట్టి అందరికీ సౌకర్యంగా ఉండాలి. మన భారత్ జై భారత్, అందరూ ఏక్ సబ్ ఏక్ సాత్ హే అన్న నినాదం, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ అనే నినాదంతో మనం ముందుకెళ్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. దీనికి మరొక్కసారి మన తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి సంతోషంగా ఆహ్వానం పలకడం అన్నది సంతోషం. జై భారత్, భారత్ మాతాకి జై. అందరు పాలిటాక్స్ ప్రేక్షకులకు మా అభినందనలు, నమస్కారం. ఇవాళ ఏదో ఈ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది, మా కార్యకర్తలు, బీజేపీ కార్యకర్తలు సంఘర్షం మొత్తం రాజస్థానీ సామాజిక సంస్థ ఇవ్వాలి. 20 సంవత్సరం నుంచి మేము కష్టపడుతున్నాం ఈ ట్రైన్ కోసం. చాలా చాలా మా మంత్రి గారు జి కిషన్ రెడ్డి గారికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే మా రైల్ మంత్రి అవినాష్ వైష్ణవ్ గారికి, ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర భాయ్ మోదీకి గారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతా కీ జై. Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.